दामों में केंद्र सरकार द्वारा कटौती किए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार इसे लेकर उदासीन रवैया ही अपना रही है, जिसके विरोध में दुर्गापुर स्टेशन के पास स्थित पेट्रोल पंप पर विधायक लखन घोरोई के नेतृत्व में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम को घटाए जाने के बाद भी राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा रही है। इसके विरोध में भाजपा की ओर से दुर्गापुर स्टेशन संलग्न पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन इलाके के विधायक लखन घोराई के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान भाजपा नेता चंद्रशेखर बैनर्जी, अभिजीत दत्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लखन घोरोई ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव के पहले गैस सिलेंडर लेकर जगह जगह प्रचार कर रही थी और चुनाव में इस बात को लेकर जीत भी उन्होंने दर्ज की। वो कहती रही हैं कि गरीब की सरकार है, मगर केंद्र द्वारा तेल के दाम कम करने के बाद भी राज्य सरकार तेल के दाम क्यों नहीं कम कर रही है। सब्सिडी जिसे लेकर राज्य में कल से आंदोलन चल रहा है। विभिन्न पेट्रोल पंप के समक्ष आंदोलन किया गया और आज वही सरकार इस मामले पर चुप बैठी है। दुर्गापुर स्टेशन संलग्न एक पेट्रोल पंप पर भाजपा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम नहीं घटाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार तेल के दाम में कटौती नहीं करेगी तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। देखুন, আমরা সকলে জানেন ভারতবর্ষে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দিওয়ালির দিন ভারতবর্ষের মানুষকে 12 টাকা ডিজেল এবং 5 টাকা পেট্রোল দাম কমিয়েছেন। আর সেই কারণে গতকাল বিজেপির রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে গতকাল আমরা কলকাতার বুকে আমরা মিছিল করেছি। যদিও সেই মিছিল পুলিশ পুরো বাহিনী দিয়ে আমাদের আটকে রাখা হয়েছিল। বিধানসভার ভিতরে শুভেন্দুর নেতৃত্বে আমরা বিক্ষোভ করেছি। তার মূল একটাই কারণ, মোদিজি যেভাবে ডিজেলের 12 টাকা এবং 5 টাকা পেট্রোলের আজকে আমাদের এক্সাইজ ডিউটি কমিয়েছেন, সেই কারণে বলতে চাই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের 22টি রাজ্য, কেউ 12 টাকা, কেউ 10 টাকা, কেউ 5 টাকা, কেউ 7 টাকা, ত্রিপুরা, আসাম, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার 22টি রাজ্যে দাম হ্রাস করা হয়েছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য, এই উপনির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার ধরেছিলেন শিলিগুড়ির বুকে, তিনি স্কুটি ফিল্টার নিয়ে যাচ্ছিলেন কি মোদি দাম কমাচ্ছে না। সেই কারণে আজকে মোদি কমিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলো কমিয়েছে, বাংলায় হচ্ছে না কেন? তিনি বলতেন তিনি গরিবের বন্ধু, তিনি বলতেন আমি প্রকৃত মানুষের কাছে কাজ করছি, আমি সব কাজ করে দিচ্ছি। মোদি করছে না। মোদি করার পরেও 22 রাজ্য করার পরেও বাংলায় কেন ডিজেল দাম কমছে না, পেট্রোলের দাম কমছে না কেন? ইলেকট্রিক বিল কমানো হচ্ছে না কেন? শূন্যস্থান নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? শিক্ষকরা ডিএ পাচ্ছেন না। আর সেই কারণে আজকে সুকান্ত নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে আমরা অবস্থান করছি, বিক্ষোভ করছি, প্রশ্ন করছি মমতা ব্যানার্জিকে কেন দাম কমাচ্ছে না। আর দাম না কমার জন্য আজকে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে। যে বাসের ভাড়া 10 টাকা ছিল সেটা 30 টাকা করা হয়েছে, কোনো আলোচনা না করে। সেজন্য বলতে চাই যে ইমিডিয়েটলি যদি পেট্রোল ডিজেলের দাম কমানো না হয় তাহলে বিজেপি নেতৃত্বে সারা বাংলা জুড়ে আজ করছি, আগামী দিন সারা পশ্চিমবঙ্গে শহরে রাস্তাঘাটে অবরোধ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ হবে যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী পেট্রোল ডিজেলের দাম না কমাচ্ছেন। আর সেই কারণেই আজকে আসানসোল জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সারা দুর্গাপুরে, সারা আসানসোলে পেট্রোলের আমাদের গেটের সামনে আমাদের এখানে যে পেট্রোল আমাদের এখানে কল্পনা সার্ভিস আছে দুর্গাপুরের বুকে, সেখানে আমরা করছি। 3টের সময় আমরা সিটি সেন্টার করবো। তার একটাই মূল কারণ বাবা বলছি, পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে হবে। তিনি বলছেন গরিবের বন্ধু, আজকে পেট্রোল ডিজেলের দাম না কমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আরও দিন দিন বাড়বে। তাই তিনি গরিবের বন্ধু বলেছেন, ভোট নিয়েছেন, লুট করেছেন, তারপরেও তিনি কিন্তু আজকে 22 রাজ্য করার পরেও কমাচ্ছে না। আর সেই কারণে প্রতিবাদ আমরা শুরু করেছি আজকে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडेश्वर के बहुला ग्राम पंचायत अंतर्गत सीएल जामबाद में आदिवासी 3X क्लब की सदस्यों की तरफ से बड़ा बांध तालाब में साफ सफाई अभियान चलाया गया। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत अंतर्गत सीएल जामबाद बड़ा बांध तालाब में
मोती बाजार आदिवासी 3X क्लब के सदस्यों ने मिलकर छठ घाट की साफ सफाई का अभियान चलाया। इसके अलावा घाट पर भव्य पंडाल बनाकर सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस संबंध में 3X क्लब के अध्यक्ष मोहन सोरेन और सचिव कर्मा मांझी ने बताया कि मोती बाजार आदिवासी पाड़ा के युवाओं और क्लब के तमाम सदस्य मिलकर 1990 से मोती बाजार बड़ा बांध छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, ताकि छठ करने वाली छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सड़क की साफ सफाई और पूरे घाट पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। साथ ही रात को जागने के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा भी बैठाई जाती है। इसमें होने वाले खर्च सदस्य खुद सहयोग राशि देते हैं। इसके अलावा कुछ सहयोग राशि चंदे के रूप में समाज के लोगों से भी मिलती है। इसके अलावा स्थानीय विधायक भी कुछ सहयोग राशि छठ पूजा में देते हैं। क्या नाम है सरकार कमेटी का? आदिवासी 3X क्लब। ये कब से हो रहा है ये छठ पूजा? 1990 से। यहाँ होने वाला जो खर्च होता है तो आप लोग खुद करते हैं या कहीं से आता भी है? चंदा वंदा करते हैं, रोड में चंदा करते हैं, जो डोनेशन होता है डोनेशन करते हैं। कल में कितना मेंबर आप लोग हैं? हम लोग मेंबर है 45। सब चंदा वंदा भी करते होंगे? हाँ, सब चंदा वंदा। इस बार छठ घाट में छठ पूजा में क्या स्पेशल करना चाहते हैं? इस साल भक्ति गाना होगा, छठ का प्रोग्राम होगा, मूर्ति वूर्ति बैठता है, हम लोग का पूजा होता है घाट पर। घाट में हम लोग सब ही करते हैं, भक्ति लोग को सबको सहयोग भी करते हैं, हर तरह से पूजा करवाते हैं मूर्ति बैठा के। ऐसे 1990 से स्टार्ट है हम लोग का, तभी से करते हैं। शर्मा की कृपा है, सब चलते आ रहे हैं। छठ व्रती लोग को क्या सुविधा देते हैं? हर तरह से सुविधा देखभाल करते हैं, मेडिकल से आरंभ करके हमेशा हर चीज़ तरह से सुविधा देते हैं। क्या नाम आपका? है? आपका क्या नाम हुआ? मोहन सोरेन। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के लोकपुर भगतपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से छठ व्रतियों को साड़ी दी गई। हिंदी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल के नेतृत्व में घर घर जाकर महिलाओं के बीच साड़ी बांटी गई। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से छठ व्रतियों को साड़ी प्रदान किया गया। हिंदी प्रकोष्ठ के बांकुड़ा जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल की अगुवाई में बांकुड़ा शहर के लोकपुर भगतपाड़ा के छठ व्रतियों को साड़ी दी गई। मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल के द्वारा घर घर जाकर साड़ी दिया गया। दिलीप अग्रवाल का कहना है कि माननीय ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही सभी छठ व्रतियों को उपहार के तौर पर साड़ी दिए जा रहे हैं। उन्हीं के निर्देश का पालन करते हुए लोकपुर के भगतपाड़ा में छठ व्रतियों के परिवार के पास पहुंचकर उन्हें साड़ी, धोती और नारियल दी गई। छठ व्रतियों के पास आवेदन किया गया कि ममता बनर्जी की मंगल कामना करें और आने वाले दिनों में दीदी को उच्च स्तर पर ले जाए। श्री अग्रवाल का ये भी कहना है कि 50 की संख्या में साड़ी बांटी गई और छठ पूजा के दिन गंधेश्वरी और दारकेश्वर के घाटों पर व्रतियों को गमछा और सिंदूर भी प्रदान किया जाएगा। अन्य जगहों की तरह बांकुड़ा में भी छठ पूजा की धूम रहती है। शहर से लगे गंधेश्वरी नदी और दारकेश्वर नदी के घाटों पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती है। আমাদের ভগতরা হিন্দি ভাষী মানুষরা যেখানে থাকে এবং আমরা জানি ছট পূজা হচ্ছে একটা বিশাল উৎসব। মমতা ব্যানার্জি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে ছট পূজা উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দি ভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে তাদেরকে একটা করে শাড়ি উপহার দেওয়া এবং তাদের পাশে থেকে ছট পুজো যাতে ভালোভাবে হয় সেই নির্দেশ মেনে আমরা আজকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, একটা করে শাড়ি দিচ্ছি এবং তাদেরকে বলছি যে ছট মাইয়াকে কাছে তারা যেন পুজো করে, যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন বাঁচে এবং আগামী দিনে যে লোকসভা নির্বাচন আছে মমতা ব্যানার্জি যেন আরও বড় জায়গায় পৌঁছে মানুষের সেবা করতে পারে এবং আগামী পৌর নির্বাচনে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস পৌরসভায় বসে মানুষের পরিষেবা দিতে পারে, এটাই আমরা বলতে এবং ছট মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করতেছি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जय माताजी स्पोर्टिंग क्लब रानीगंज की तरफ से ईस्ट कॉलेज पाड़ा में सस्ते बाजार लगाए गए हैं, जिसकी खरीदारी के लिए सोमवार के बाद मंगलवार भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित जय माताजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से लगाए गए छठ पूजा के लिए बाजार में सोमवार के बाद मंगलवार भी भीड़ देखी जा रही है। लोग बाजार से सस्ते दामों में सामान की खरीदारी करने के लिए इस बाजार पहुंच रहे हैं। छठ पूजा के अवसर पर पिछले 3 सालों से जय माताजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसमें छठ पूजा के दौरान उपयोग होने वाले सभी सामानों को लेकर
फल सब्जी तक की बिक्री की जा रही है। इस बाजार में सेब, केला, गन्ना, कमला नींबू, नारियल, शरबती आलू, बेर, अदरक, हल्दी के पौधे, अमरूद, अमरक, कैथा बेचे जा रहे हैं। सेब यहाँ 80 रुपए प्रति किलो बेचे जा रहे हैं, जबकि केला 200, 300, 400 रुपए कांधी बेचे जा रहे हैं। गन्ना 15 से 20 रुपए बेचे जा रहे हैं। कमला नींबू की कीमत 20 रुपए पीस बताई गई है, जबकि नारियल 30 से 40 रुपया पीस, सरबतिया आलू 10 रुपए किलो, बेर 20 से 30, अदरक और हल्दी के पौधे 5 रुपए और अमरूद 40 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। जय माताजी स्पोर्टिंग क्लब के सदस्यों का कहना है कि महामारी के साथ ही महंगाई भी काफी बढ़ चली है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए खुद का खर्च उठाना ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से छठ पूजा जो काफी कठिन पर्व है, इसे पूरे नियम के साथ करने में काफी पैसे खर्च होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सस्ते दामों में सामानों की बिक्री करने के उद्देश्य से हमारी क्लब की तरफ से ये बीड़ा उठाया गया है। इस दौरान जय माताजी स्पोर्टिंग क्लब के शरद जायसवाल, अजय साव, प्रदीप साव, दिनेश गुप्ता, पंकज साव, संचित साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। कॉलेज पाड़ा में छठ पूजा का अवसर में ये जो मार्केट कितना साल मतलब हो रहा है इस साल लेके? 4 साल हुआ है। जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब का ये पूजा पर्व 4 साल से हो रहा है। अच्छा, ये मार्केट 4 साल से मतलब लग रहा है यहाँ 4 साल है। पे? अच्छा, क्या मतलब क्या यहाँ पे मतलब बिक रहा है छठ पूजा यहाँ का? पर टोटल सामान बिक रहा है, जितना छठ में लगता है टोटल सामान बिक रहा है। अच्छा, कुछ सामग्री का रेट थोड़ा बताइए कैसे बिक रहा है? एप्पल जैसे है 60-80 का है, और नारियल है 30-40 का है, 30 का 40 का है, और केताली है 20 का है, और केला कांदी है 200, 300, 400 का है, ये सब रेट का है। और आपका जो पेड़ लग रहा है ये हल्दी पेड़ ये सब ये रेट 5-5 रुपये का, 5-5 रुपये, 5 रुपये पीस। अच्छा। और मिश्री कंद है 10 रुपये किलो, पानी फल है 20-30 रुपये किलो है, 40 का, सब क्वालिटी का है। मतलब सुबह से मार्केट में तो रिस्पांस कैसे मिल रहा है? 8 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा, मार्केट में भीड़ कैसा लग रहा भीड़ है? काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है। अभी तक मोटा मोटी 8 लाख का सेल हो चुका है, 8 लाख का सेल हो चुका है सुबह से अभी तक का। आपका नाम परिचय? दिनेश प्रसाद गुप्ता, प्रेसिडेंट जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब। जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हाल आयोजन का प्रोग्राम चालू किया गया है। हर साल के अपेक्षा में इस साल भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, और इसके बाद यहाँ छठ पूजा में लगने वाला हर प्रकार का फल वितरण मिल रहा है। यहाँ पे सेब है, नींबू है। थोड़ा रेट हम लोग दर्शकों को बताइए, मतलब किस रेट से बेच रहे हैं? 80 रुपये किलो बिक रहा है, केला 200, 250, 300, 350 तक बिक रहा है। डाब 20 रुपये पीस में बिक रहा है, और आपका बैड 100 रुपये किलो बिक रहा है। हल्दी गाछ और क्या गाछ ये सब? हल्दी गाछ 5 रुपये पीस मिल रहा है, और आपका नारियल 40 मिल रहा है, और गन्ना आपका 20 रुपये पीस में मिल रहा है। और हर साल से इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। अच्छा, कल शाम को अर्घ है, तो आज मार्केट का रिस्पांस कैसे मिल रहा है अभी तक? आप लोग कितना सेलिंग कर चुका है अभी तक कैलकुलेशन? मार्केट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जुला के 5 लाख रुपये तक का सेलिंग हो चुका है, प्लस अभी तक शाम तक में हमको लगता है 7-8 लाख तक पहुँच जाएगा। आपका नाम परिचय? मेरा नाम सूरज साहू है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज हटिया बाजार में छठ पूजा को लेकर भीड़ देखी जा रही है। बुधवार पहले अर्घ्य के साथ ही डूबते सूरज की पूजा की जाएगी, जिसके लिए बाजारों में छठ व्रतियों द्वारा जोर शोर से खरीदारी की जा रही है। दुर्गा पूजा, दीपावली और काली पूजा के बाद अब आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए बाजारों में भीड़ बढ़नी भी शुरू हो चुकी है। सोमवार नहाय खाए के साथ छठ पूजा का आरंभ हो चुका है, और आज मंगलवार दूसरे दिन खरना है। आगामी बुधवार सूर्य को पहला अर्घ्य देने के बाद गुरुवार दूसरे अर्घ्य के साथ ही पूजा का समापन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूजा की तैयारी के लिए लोग भक्ति में लीन होकर जुटे हुए हैं। बाजारों में भी छठ पूजा में लगने वाले सभी सामानों की बिक्री शुरू हो चुकी है, और इसे खरीदने वाले लोगों की भीड़ भी देखने लायक है। रानीगंज के हटिया बाजार में मंगलवार कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। छठ पूजा में उपयोग होने वाले सभी तरह के फल, सब्जी, सूप डाला की बिक्री जोरों पर है।
ज्यादातर लोग कल के लिए आज ही खरीदारी कर रहे हैं ताकि कल बड़े आराम के साथ सिर्फ पूजा संपन्न कर सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं सल्पांचल की ताजा खबरों की ओर। महापर्व छठ आरंभ हो चुका है, जिसे देखते हुए महापर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले सूप, दौरा आदि की बिक्री बाजारों में आरंभ हो चुकी है। महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, जिसे देखते हुए महापर्व छठ में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस से बने सूप, दौरा आदि की बिक्री बेनाचित्ती बाजार, चंडीदास बाजार में आरंभ हो गई है। कुछ दुकानों में इसे खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है। इस संबंध में दुकानदार मदन दास ने बताया कि मौसम बिगड़ने के कारण बांस की कटाई कम होने के कारण बनी सामग्री की मांग के हिसाब से कब बनाई गई है। साथ ही कारीगर द्वारा रोजगार छोड़कर दूसरे धंधे में प्रवेश करना, इसके चलते तो आमदनी कम होने से सूप का दाम बढ़ चुका है। एक सूप 200 से 300 में बिक रहे हैं, वहीं दौरा 500 से 600 रुपए में बिक रही हैं। फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बेनाचित्ती बाजार में फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सेब 150 से 200 में बिक रहा है। सूखा नारियल 50 से 60, सेब 70 से 80 किलो, संतरा 80 रुपए किलो, केले का घावा 300 से 400 रुपए में बिक रहा है। छठ व्रती द्वारा बाजार करने आई एक महिला ने बताया कि छठ के सारे सामान काफी महंगे में बिक रहे हैं, फिर भी किसी भी तरह से कम सम करके बाजार किए जा रहे हैं। जोर से बोलिए। कोमल। कमल क्या? कोमल मंडल। कमल? कोमल मंडल। अच्छा, आप तो छठ का बाजार कर रहे हैं। हाँ। अब तो हर साल में छठ पूजा कर रहे थे, तो इस साल में क्या बाजार का भाव ज्यादा है ना कमती है? ज्यादा है पहले से। हाँ, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा। करेंगे, हर साल तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। कुछ करने का नहीं है, लेना ही है हमको। इस साल से इस बार। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सुनीता श्रीवास्तव। हाँ, सुनीता श्रीवास्तव। तो आप क्या छठ पूजा का बाजार कर रहे हैं? हाँ, बाजार कर रहे हैं। तो हर साल में तो करते थे आप बाजार, हाँ। तो इस साल में क्या भाव कैसा चल रहा है? भाव तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ। फिर हाँ, हर साल कैसे चलता है? इस साल में ज्यादा चलता है क्या? हाँ, इस साल ज्यादा चल रहा है। तो आप लोगों को पूजा करना ही पड़ता है? करना पड़ता है। हाँ, हमको लेना ही पड़ेगा, पूजा तो करना ही पड़ेगा। ठीक। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन को देखना चाहिए कि दुकानदार का कहना है कि तेल की महंगाई के चलते सब चीजों का दाम बढ़ चुका है। हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार गुप्ता। जोर से बोलिए। राकेश कुमार गुप्ता। क्या आप छठ का बाजार कर रहे हैं? तो क्या हर साल में जो छठ पूजा हो रहा है, इस साल में भी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, क्या ये बाजार का भाव कैसा चल रहा है? बाजार का भाव ठीक ही है, आगे से थोड़ा सा बेसी लग रहा है। आगे से ज्यादा है भाव? हल्का ज्यादा है। अच्छा, तो क्या फल का जो बाजार है ये हर साल में जैसा है, इस साल में ऐसा है? इस साल भी ऐसा है, ज्यादा है, लेकिन बाजार तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। छठ पर्व है तो हर एक साल करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ेगा, इसका उपाय भी तो नहीं है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिवस के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कई कार्यक्रमों के मध्य कानूनी जागरूकता शिविर पालन किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिवस के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कई कार्यक्रमों के मध्य दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर बांकुड़ा लायंस क्लब के व्यवस्थापना के तहत बिकना स्थित लायन सेवा सदन प्रांगण में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रमुख वक्ता के रूप में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रभारी सचिव अधिवक्ता इंद्रनील चैटर्जी, भूतपूर्व इंटरनेशनल लायन डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया के अलावा अधिवक्ताओं में अंकिता घोष, स्वामी चक्रवर्ती, बिल्लेश्वर सिंह, अमल चैटर्जी, प्रीति गोयंका, लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जलान,
सचिव अभिषेक अग्रवाल, लायन अनुमिता चैटर्जी, लायन अभिषेक बाजोड़िया, नादिया इंदु विश्वास समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मौके पर लीगल सर्विसेज की तरफ से बिल्लेश्वर सिंह ने बताया कि नालसा दिवस के उपलक्ष्य में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पद यात्रा से लेकर चित्रांकन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है एवं लायंस क्लब की मदद से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। मौके पर क्लब के सचिव अभिषेक बाजोड़िया ने बताया कि DLSA के सहयोग से कानूनी सलाह शिविर का आयोजन किया गया है। ভাবতাম যে আরে আমাদের কাজ তো কোর্টে বসে কাজ করা, ঠিকই গ্রামে যাবো কেন, ক্যাম্প করবো কেন, ওরা আসবে আমার কাছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এটার যে আইনটার সিগনিফিকেন্সটা যখন বুঝলাম বা আমাদের যারা সিনিয়র রয়েছেন তাদের সাথে কাজ করতে করতে যখন দেখলাম যে এ তো একেবারে আইনের গোড়ার কথা। আইন সবার জন্য সমান শুধু বলতে হবে না, আইন সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তাকে জানাতে হবে তোমার কি অধিকার। আর যদি অধিকার সম্বন্ধে কেউ সচেতন না হয়, আর যদি কেউ কাউকে মারে এবং যে মার খেলো সে যদি ভাবে যে এটাই আমার ভূমিতব্য বলে চুপ করে বসে যায়, তাহলে তো সেই পুরোনো কথাই বলতে হয়, অন্যায় যে সহ্য করেছে সেও সমানভাবে দায়ী। কিন্তু তাকে তো আগে জানতে হবে যে আমি কোথায় গেলে তার সুবিধা হবে। আমার আজকে টাকা চিটিং হয়েছে, আমি থানায় যাব না মিষ্টির দোকানে যাব, সেই অ্যাড্রেসটা তো আমাকে জানতে হবে। কি প্রোগ্রামটা হচ্ছে? আজকে আমরা জানি যে জাতীয় আইনি দিবস, ন্যাশনাল লিগেল সার্ভিস ডে আজকের দিন। এই দিনটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটি বাঁকুড়া অবজার্ভ করছে। সকালে আমরা পদযাত্রার মাধ্যমে অবজার্ভ করি, স্কুলের কচিকাচারা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক কার্যকর্তারা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষজন অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ধাপে আজকে লায়ন্স ক্লাবে একটা আমাদের আলোচনা চক্র হয়েছে, যেখানে ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিম, প্রিজনার রাইট, ডিসেবিলিটি রাইটস এবং DLSA কীভাবে মানুষের কাজ শুধু কেস কাছারি না ছাড়াও মানুষের জন্য কীভাবে কাজ করে চলেছে সেই সম্পর্কে আজকে আলোচনা শিবির হচ্ছে। এই শিবিরে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের বাঁকুড়া কোর্টের এডিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জাজ তথা আমাদের DLSA-র সেক্রেটারি ইনচার্জ ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি মহাশয়, উপস্থিত আছেন প্রমিনেন্ট সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট কৃষ্ণ বাজরিয়াজি, নেট সিনিয়র অ্যাডভোকেট অমল চ্যাটার্জি, উপস্থিত আছেন আমাদের কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট PLP এবং শুধু নাগরিকবৃন্দ এবং লিটিগেল পাবলিকরাও এসেছেন শোনার জন্য এবং তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য। আপনার পরিচয়? আমি অ্যাডভোকেট বীরেশ সিনহা, এমপ্লয়েড লয়ার, DLSA बांकुड़ा। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PB न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। सल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।